As a child expert, what are the mistakes or what should we not do? आई रन अ स्कूल जहाँ पे 600 बच्चे और मैं इतने पेरेंट्स को डेली बेसिस पे वर्ल्ड वाइड में मिलती रहती हूँ. क्या मिस्टेक्स पेरेंट्स से हो रही है आज के ज़माने में? नंबर 1 मिस्टेक ये हो रही है, पेरेंट्स बहुत बिजी है बिल्डिंग देयर लाइफ, बिल्डिंग उनका बिजनेस. उनके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है. लेकिन हम बच्चे के लिए जिंदगी बनाता है ना. बट इन दिस डे एंड एज आपको ना सबसे ज़्यादा बच्चे के साथ में कनेक्शन पे वर्क करना है. सेकेंड इज 90% पेरेंट्स बच्चों को मार रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, बाथरूम में बंद कर रहे हैं. बच्चे में वो फियर ला रहे हैं उनको डिसिप्लिन करने के लिए, विच इज रॉन्ग. My parents say my brother's better than me. तेरे साथ वाले सब आगे निकल जाएंगे. मेरा कुछ नहीं हो सकता. मुझे पेरेंट्स जो भी कंप्लेन लेके आता है ना, मैम मेरे बच्चे में ये कमी है. पेरेंटिंग इज नेवर अबाउट योर बच्चा, पेरेंटिंग इज अबाउट पेरेंट्स. मैं इमोशनली कैसे मेरे बच्चे को रेजिलिएंट बनाऊंगी इज सोने से पहले मैं मेरे बच्चे को, अब सुबह बच्चा जैसे स्कूल के लिए उसको उठना है, उसका बस आ रहा है सपोज 8 o'clock और मैं उठाऊंगी उसको एकदम 7:30 पे और उठ के भागो 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 उठो. नो, आप बच्चे को प्लीज थोड़ा जल्दी उठाने की आदत डालो और थोड़ा जल्दी सुलाने की आदत डालो और उसको प्यार से उठाओ. बिकॉज मॉर्निंग के जो 5 मिनट्स हम जब उठते हैं ना, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज स्टिल वेरी एक्टिव और उठते से ही सीधा बच्चे को बॉम्बार्ड करोगे ना. और एज अ मदर आई नीड टू वेक अप और 15 मिनट्स अर्ली. हम क्या करते हैं, मैं ही लेट उठी और बच्चे को भी मैंने लेट उठाया, मैं भागी, बच्चा भागा और सुबह तो मेरा घर केओस है. ऐसा मत कर. Are we parenting our kids or trying to heal ourselves through them? In this episode, I sit down with Shweta Merchant Gandhi, an acclaimed parenting coach and speaker, to dive into the complex world of modern parenting. Now, this is from whether you are couples should even consider having kids in today's high-pressure world to how work stress silently affects a child's mental health. Shweta unpacks the tough question every parent faces, and trust me, I got a lot of thappads in this podcast because I realized a lot that I am doing as a parent was absolutely not right. We discussed practical tools for handling tantrums, fostering emotional resilience, and raising confident kids, something I want in my son. This podcast is for people who think about the future. Shweta shares a lot of insights on tapping into your child's subconscious mind. Additionally, I'm a nutritionist. I know what superfoods to give a child, but she also mentioned what she gives her children for brain and height development. And the secret of the 7-7-7 rule is a game changer for families. You usually talk about the 7-7-7 rule for kids. What's that? This episode is a guide for people like you and me who are parents looking to connect more deeply with our kids and we don't know how to do it. So parents, this one is my gift from me to you. Shweta, this is amazing. I am super excited to be here today with another fellow parent. I'm assuming you have beautiful kids. I have an 11-year-old. And today I want to pick your brains as a child psychologist, more as a parent who has the science behind how do we behave with our kids and how do we behave with ourselves as parents. So I'm going to dive straight into it. Absolutely, I'm all ready. I remember my first discussion with my wife when we were dating. And one of my friends said to me, ask her whether she wants to have children. And I was like, no, you can't ask that question. You got to wait till you get married and then, decide whether you want to have a kid or not. So my first question is, should dating couples or people having an arranged marriage talk about it? And even after you get married, how do you approach the subject to have kids or not to have kids? What's your take as a child, let's say, expert on this? So, having a child is a very subjective thing, right? I may love as an individual to have children, but the person that I'm dating may completely averse the idea of having children. So, of course, before getting married, you must have a chat with your partner about what your goals after marriage are. How do you want to take it further? Whether you want to, how do you want to work? Whether you want to stay with the parents, with the family, you want to stay nuclear, whether you want to have children, because having children, it changes your universe, right? Totally. So you got to be ready in a lot of aspects, right? First aspect is, are you emotionally ready for it, right? So you both talk that, are we emotionally ready for having a baby? Second is,
are we financially ready for it? Because, well, kids are expensive, right? Taking from school to classes to simple things like diapers, kids are expensive today. Oh, I remember diapers. I actually did an entire costing Yeah. after my son. So heavy. Yeah. And I was like, dude, I spent nearly 2.5 lakh rupees on Diapers per annum, right? Yeah, and it's it's like, crazy. okay, no, I want the German diaper, I want the American diaper, because, I buy the raisins and the almonds, which are... Yeah, the from- California almonds. Correct, right? Right? So I'm like, okay, my kid needs this. And I think many of us who are working and earning well, we want to spoil our children. We have 1 or 2 Absolutely. children. But do we really need to pamper our kids? And do we need to have that thought before we even have our kids? Can I budget for a child that is coming in? Should couples start thinking about this before they have a kid? Or like our Absolutely, parents, just have the kid. No, yeah, not in today's day and age. You Why is cannot that? just have the kid, because the whole world is changed. Like what our parents, the generation that they were in, and today, when we see the kids, the generation, the world is changing at a speed that we can't even fathom. The world is growing at such a fast pace, and with AI coming in, with the businesses evolving, changing so much, the whole world is changing at such a fast pace. You really need to be very well calculated about what I want, how I want, when I want, right? Just to be relevant. Otherwise, things may just go haywire, and having a child is one of the most important decisions of your life, because it just flips your life. And if you're not ready for it, emotionally, mentally, physically, or financially, you're just going to be lost, and then follows the postpartum depression. There's a lot of mental game that follows, right? So you have to be very, very thick about this decision, that I know what I'm doing. So you said it's going to flip your life. Whenever couples come to me, now I'm a nutritionist, I do health coach Right. stuff. I always tell people you should have a planned pregnancy. Now, from my domain, the planned pregnancy is your body physically, your genetics, Absolutely. the woman's egg, the Absolutely. man's sperm needs to be like at the highest possible level. Right. So I tell a lot of people you need to have a planned pregnancy. But I also run one of India's largest nutrition clinics with over almost 150, 170 dietitians. I've lost count now. Right. All 98% are women. Right. And I hear the banter in the lunchroom. Many of these are young girls just married or getting married. What should the female be ready for in today's day and age, where society or even the girl expects to be a leader in her space, have a career, and also when getting married, be a wife, be the bahu of the house, take care of the house, and put all of this together, and then suddenly you're thrown into this mix of you got to be a mom also at some yeah. point. So do I plan my pregnancy for a woman? And what are the tips that you would give as a person with experience having 2 children and being a child expert? So, giving a little background, okay? I have 2 children. I run a school called Happy Minds, where I have 600 children in my school. This has been since past 12 years that I've been running. I started with 3 students, and today we cater to 20,000 students worldwide, and we are present in 52 countries of the world. And all of this I built myself in past 12 years with getting married, having 2 children, postpartum, getting pregnant, delivering, everything, right? My daughter is just 1 year old, Wow. right? So all of this, every step of the way, what was the prime thing that I did was plan. I knew I wanted to have 2 children. I knew I wanted to, When did you know you wanted to have 2 children? from the very Before beginning. your husband, after your husband? I think just when the thoughts of getting married and I was dating my husband, I knew that, I wanted to have 2 children. So is it important for a female to kind of also have that thought process and think through? Absolutely, because I believe in manifestation. What you think, you are going to, you're going to unfold your life with the actions, with the thoughts, with every cell in your body, listening to your thoughts, and you taking your direction of life in that way. You are manifesting through what you're thinking. What was your husband's thought? He never wanted kids.
But well, So that I convinced him, So that's not for this- one, but for two. Yeah, so you convinced him. So in fact, it's very, very similar. Like my wife is the most amazing woman in terms of running the business, taking care of the house, even taking care of me. But I remember one day she said to me, I don't think I want children, Yeah. right? And in my mind, I was clear. And both of us had a late marriage. We got married. I was, I think, 35 and she was 33. Wow. Okay. Right? So obviously, and my mom-in-law is a gynecologist, right? Okay. So of course, so then she like- knows what's happening in yeah, there. she was like, no, you need to have kids very fast. And I remember that even after getting married, there was this kind of like, will I have a kid? Will I not have a kid? And hers was like, I don't want a kid. I think I want a kid. Yeah. So I think what's important is that sometimes dialogue between the partners of having a kid or not to have a kid, Absolutely. that dialogue really helps. It helps. And see, not a lot of times both of you will be on the same page. But you have to come on the same page. Like, talk, convince, do's, don'ts, pros, cons, figure everything out, put your thoughts and feelings, whether we want to have that legacy of love, right? We want to nurture, we want to build our family. What are we going to do if we don't have children? What are we going to do if we have children? So thinking that through is But very don't important. you think sometimes, I mean, this is a real sensitive topic, What if we have children? What if we don't have children? When we grow old, who will be there with us? Is this too early to have it with, let's say, a girlfriend-boyfriend discussion? Or you should be having that at some point if you're thinking of spending Well, the if rest you're of your in a life? serious relationship, you know that you see marriage on cards, then you should talk about it. You definitely should talk about it because it shouldn't come to you as a surprise that, you don't want kids and, all this while I was riding along with you thinking that, I want to have a family after my marriage. And well, it's very natural for somebody to have that feeling that I want to have my own family. But it's also very okay if you are of the school of thought that I don't want kids. So it's both of you have to have a very honest, healthy, open dialogue where you share your thoughts and where you are also ready to adapt to the person that you love. That, okay, you know what? Because you love, and that's what happened with my husband as well. That, okay, you know what? Since you want a child, I'm on board with it. And once I had first child, and then I was like, you know what? I want another child as well because I was brought up in a way that with my brother, I had my childhood, my entire childhood was so solid, so fun, so happy because of my brother. So I always wanted that for my child as well. That it's. Does your husband today spoil your children silly? He does. He sure does, and so do I. Both of us do. However, we'll talk about it when we talk about discipline and spoiling them because that's another very Vast subject, vast subject and also very misinterpreted subject. So, for example, if your partner is just not on board with it, you have a healthy discussion. You talk about financially if we are ready or not, mentally, if I want to nurture, if I want to have a family. In my house, I want this kind of values of this kind of, environment in my house. And I just see that a child will bring a lot of joy. So you talk about all of those things and you just get on board with it. Or if somebody is very, like two of my brothers, out of my three brothers, two of my brothers, they're married for 10 years and they don't want kids at all. And both of them are absolutely on board with the idea of not having children, which is also absolutely correct because they are like, it's too much responsibility and we don't want it. I And think we also see another generation of couples that don't biologically have their own children, but they adopt children. They and I have a few adopt. friends who have gone Yes. and adopted children, and it's amazing to see them getting into parenthood. Absolutely. But biologically, I have my own biological child. I'm like, how do you guys do it? Yeah. So is there another part also to parenting that's not got anything to do with biology, but a conscious choice? Absolutely, yes. So there are pet parents as well, and they are absolutely comfortable having a pet as their own child, and they have all the fulfillment, the nurturing with the pet, and which is absolutely okay. See, this is a very personal choice. There are no rules to this. And how do we convince our parents in situations where
I still remember, my mother, after the first child was born, asking me, when are you all having the second child? Yeah. And I was like, no, you know what? I really love my wife, and she's given me one child, and I'm super happy with that child. Yep. So you have society pressure from the parents, Absolutely. right? And so many parents are like, oh, what's this? You're going to have pets as parenting. And I think that's absolutely okay in today's day and age. It is. But how do we convince the older generation? Having that emotional dialogue that connect with the parents, explaining them your way of life. See, because they have seen the world with a very different lens. And the older you go, your brain neural pathways, they keep on shrinking, and they just think that my way of life is the right way of life. What I have done is pretty fulfilling, and this is how it should be done. So you just try and talk to them, convince them, and you just get them on board by having a very healthy, open, honest conversation about it. And eventually they really do get on board with it. I have seen in my own family, not having children, having 2 kids, being a pet parent, everything's in my family, and my parents are okay with every child choosing their own way of life. Right? We are adults, we choose for ourselves, and as parents, all you need to do is support your children and not overstep in their decisions. So when my son was born, I clearly remember the day. I vividly remember the day, the smells. When he was born, I was in the operating room. He was a natural delivery baby. I remember when I married my wife, and I said to her, I don't think this is love. I think this is just logic that we are getting married and we have great companionship. But I remember the day it shifted was the day I saw my son for the first time. Something seismically shifted in my head, and I came out to call the family. Now my mom's a gynecologist. I'm like, Maji, aap andar jao. She's like, nothing doing. You're the father, you get in. So at that moment when I came out to tell everyone, I went and sat down outside, and I'm like, oh God, I am a father now. And it hit me. It sunk so deep. Like, I remember choking, and then I felt tears coming out, and I'm like, no, get it together. You're a father now. I can imagine. And then that evening when I held him, I was like, okay, this bundle of joy is mine. Yeah. And then a cold sweat hit me. Am I ready to become a parent? Absolutely. उसी समय से मैं सोच रहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, बिजनेस बनाने का है, डाइट का क्लिनिक्स करने का है, मेरे बच्चा को टाइम नहीं दे सकता है. एंड सो आई नो कि भाई मेरे पास एक ही बच्चा है, कुछ तो टाइम देना ही पड़ेगा. तो काफ़ी सारे गलत वाला चीज़ में सोचता है, कर रहा है बेटे के साथ या बेटी के साथ. तो एज अ चाइल्ड एक्सपर्ट, आप तो एक्सपर्ट है, व्हाट आर द मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स हम लोग कर रहे हैं वो क्या चीज़ होते हैं, और व्हाट शुड वी नॉट डू, क्या नहीं करने का. राइट. सो जैसे मैंने आपको बताया, आई रन अ स्कूल जहाँ पे 600 बच्चे, और मैं इतने पेरेंट्स को डेली बेसिस पे वर्ल्ड वाइड में मिलती रहती हूँ. एंड क्या मिस्टेक्स पेरेंट्स से हो रही है आज के ज़माने में. नंबर 1 मिस्टेक ये हो रही है, पेरेंट्स बहुत बिजी है बिल्डिंग देयर लाइफ, बिल्डिंग उनका बिजनेस, उनके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है. लेकिन हम ऐसा करते हैं कि भाई बच्चे के लिए ज़िंदगी बनाता है ना. या बट उसके साथ उसका जो बचपन है 0 to 7 years, जहाँ पे आपको उसको इमोशनल इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा देना है, तब आप अवेलेबल नहीं हो. पेरेंट्स पूरा दिन ऑफिस पे है, बच्चा घर पे, अभी तो न्यूक्लियर सेटअप ज़्यादा है, तो बच्चे शायद डे केयर में है या फिर नैनी के पास है, एंड पेरेंट्स आर बिल्डिंग. तो 0 to 7 सबसे इम्पॉर्टेंट इमोशनल बिल्डिंग फेज बच्चे के लिए. यस, मैं आपको 7 आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हेन वी गेट देयर. ठीक है, तो ये पहला मिस्टेक है. हम लोग बहुत बिजी है. वी आर वेरी बिजी एज पेरेंट्स. हम बच्चों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है. नंबर 2, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, ऑफिस का मुझे टेंशन है, तो मैं जब भी घर पे आती हूँ तभी भी मैं फ़ोन पे रहती हूँ, मैं बिजी रहती हूँ, मैं बच्चे के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ. नंबर 3, मैं बच्चे के कंपेयर कर रही हूँ दूसरे बच्चे के साथ. आई एम डूइंग सो रॉन्ग विद माई बच्चा, एंड उसमें उसका सेल्फ एस्टीम बहुत हिट हो रहा है, बहुत लो हो रहा है. बच्चा का जो एज में कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बिल्ड होना चाहिए, विद कंपैरिजन मैं लिटरली अटैक कर रही हूँ उसकी सेल्फ एस्टीम पे. आपको एक कन्फेशन करने का है. मैं ये चीज़ हमेशा मेरा बच्चे के साथ कर रहा हूँ कि आइकन,
why can't you be like that boy, so disciplined, why can't you study like him? तो मतलब मैं मेरा बच्चा को थप्पड़ दे रहा है, इमोशनल थप्पड़ दे रहा है. एब्सोल्युटली इमोशनल थप्पड़ दे रहे हो आप, बिकॉज माई बच्चा इज होल इन हिमसेल्फ. वो जैसा है माई बच्चा इज, मुझे उसको वहीं से बिल्ड करना है, राइट? मुझे उसको वो कैसा है उसका पूरा बायोलॉजी, ब्रेन केमिस्ट्री, न्यूरल पाथवेज, न्यूरल कनेक्शंस, द वे ही सीज द वर्ल्ड कंप्लीट डिफरेंट है. और मेरे बच्चे का ब्रेन, उसके न्यूरॉन्स, उसके कनेक्शंस, उसका बायोमी, सब कुछ डिफरेंट है. मैं कोई दो बच्चे को, ट्विंस को भी मैं कभी कंपेयर नहीं कर सकती हूँ. मैं बायोलॉजिकली, मेंटली, न्यूरोलॉजिकली मैं नहीं कर सकती हूँ. सो हम इमोशनली या लॉजिकली क्यों कंपेयर करते हैं, या अकेडमिकली? तो ये तीसरा वाला मिस्टेक, राइट. देन चौथा मिस्टेक क्या है कि मेरा बच्चा, मैं उसको कुछ समझा रही हूँ, 2-3 बार समझाया, नहीं समझा, तो मैं उस पर एकदम बरस गई. मैं इतनी गुस्सा हो गई उस पर. एंड एज अ पेरेंट मेरा बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं है. कभी मैं बहुत प्यार बरसाती हूँ मेरे बच्चे पे, और मैं कभी अचानक एकदम गुस्सा हो जाती हूँ. माई बच्चा इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मेरी मम्मी कभी मेरे से इतना प्यार से बात, कभी अचानक गुस्सा हो जाती है. मेरे बिहेवियर में कंसिस्टेंसी ही नहीं है. मैं कभी बच्चे को कुछ चीज़ अलाउ कर रही हूँ, मैं कभी उसको कुछ चीज़ के लिए एकदम स्ट्रिक्ट होकर मना कर रही हूँ. मेरे बच्चे को क्लियर मैसेज ही नहीं मिल रहा है, मम्मा आप क्या कहना चाहते हो. अगेन मेरे बच्चे का ब्रेन, लॉजिक ब्रेन इज नॉट डेवलप्ड एट ऑल. इट इज सो अंडर डेवलप्ड, पर स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग सो मच लॉजिक फ्रॉम माई चाइल्ड. इज दैट फेयर टू माई चाइल्ड? नो, बिकॉज उसका ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ है कॉग्निटिवली टू अंडरस्टैंड. जो मैं उसको इतना अच्छे से समझा रही हूँ उसको नहीं समझ आ रहा है. उसमें बच्चे की गलती है नहीं, उसका ब्रेन ही अंडर डेवलप्ड है. उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल उनके लॉजिकल रीजनिंग के लिए, उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो डेवलप होना स्टार्ट होता है एट 5 years. और वो कब तक डेवलप होता है? टिल we become 25 years. अरे बाप रे, 25? Yes. तो मतलब up till 25 बच्चा हो सकता है, मतलब ही इज थिंकिंग लाइक अ किड. उसका ब्रेन धीरे धीरे मच्योर हो रहा है, बट फुल्ली मच्योर कब हो रहा है? 25 years पे. तो ये सारे पूरे जर्नी में 5 years, 0 years से लेके 25 years तक मुझे एज अ पेरेंट बच्चे के साथ क्या करना है? इमोशनली कनेक्ट करना है. कहीं पे मेरा बच्चा अगर गलत हो रहा है तो मुझे इसे काउंसिल करना है, प्यार से समझाना है, बिकॉज मेरे बच्चे को उतना ही आएगा जितना मैंने उसको सिखाया है. इमोशनल रेगुलेशन अगर मैंने मेरे बच्चे को सिखाया है तो उसको आएगा, पर मुझे ही नहीं आता खुद को इमोशनली रेगुलेट करना. तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि मेरा बच्चा गुस्सा ना करे, जिद ना करे, फ्रस्ट्रेट ना हो? डू आई नो ये सब कैसे करना है? क्या मैं खुद को संभाल सकती हूँ? एम आई मॉडलिंग द बेस्ट बिहेवियर और द आइडियल बिहेवियर जो मैं मेरे बच्चे में देखना चाहती हूँ? मैं नहीं कर सकती और मैं मेरे बच्चे से एक्सपेक्ट कर रही हूँ. इज दिस फेयर? इट इज़ फेयर की बात तो छोड़ो, इट्स लॉजिकली इनकरेक्ट. श्वेता, आप बहुत, मतलब मेरे अंदर में इतना गिल्ट नहीं होता है, हिंदी में बोल सकता है कि खुद का आग है. आई एम फीलिंग एंग्री विथ माई सेल्फ कि दिस इज सम ऑफ द मिस्टेक्स आई एम मेकिंग विथ माई 11-year-old. एंड तो मेरा सवाल ये है कि व्हाट डू आई नीड टू डू एज अ पेरेंट? क्योंकि मेरा दिमाग के अंदर ये है कि डिसिप्लिन करने का है. आई लव माई चाइल्ड, हाँ ठीक है, मेरा प्यार एक तरफ का है. Absolutely. लेकिन आई ऑल्सो फील मैं हेलीकॉप्टर पेरेंट हूँ. हेलीकॉप्टर का मतलब हमेशा उसके ऊपर आई कैन, डिड यू स्टडी, माइक्रो मैनेजिंग, कंट्रोलिंग उसकी लाइफ का हर एक एस्पेक्ट, टू मच अवेलेबल. और बच्चा एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यू नो, लेट बच्चा फेल, लेट मी फेल, लेट मी लर्न, लेट मी मेक मिस्टेक्स. मैं सीखूंगा एंड आई विल कम आउट एज अ विनर. मेरे को स्पेस दो, इतना मेरे पे हेलीकॉप्टर मत बनो. So what are the things we should tell India for all the young parents? What is your advice? आपका एडवाइस क्या है? हेलीकॉप्टर पेरेंट, एंड हाउ डू वी, हम लोग छोटे बच्चे से, नाउ यू आर सेइंग अप टू 25 द ब्रेन इज स्टिल डेवलपिंग, हाउ कैन वी डेवलप हमारा जो चिल्ड्रन का डिसिप्लिन? कैसे करने का है? डांटने का है, पनिश करने का है? So, सबसे पहले रैन, आप जब डिसिप्लिन की बात करते हो तो आप भी डिसिप्लिन वर्ड को ना थोड़ा एक लो लाइट में देख के बात कर रहे हो कि मुझे डिसिप्लिन करने का है. डू यू थिंक डिसिप्लिन नेगेटिव चीज़ है?
डिसिप्लिन सबको लगता है पनिशमेंट है, डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट है. नो, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट दो अलग चीज़ें हैं. डिसिप्लिन मीनिंग मैं मेरे बच्चे को सिखा रही हूँ रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल थ्रू इमोशनल कोचिंग. पनिशमेंट मीन्स जो आउटकम आया उसके डर से मैं उसको डांट रही हूँ, मार रही हूँ, वो पनिशमेंट है. डिसिप्लिन नेगेटिव वर्ड नहीं है. डिसिप्लिन अगर प्रॉपर वे में, अगर आप डिसिप्लिन का ट्रू एसेंस अगर समझ जाओगे ना, इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड एंड इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू डू विद योर चाइल्ड. श्वेता जी, मेरे को एक एग्जाम्पल दे सकते हैं ये डिसिप्लिन कैसा कर सकता है आप, लाइक विथ योर डॉटर और योर चाइल्ड? ओके. नाउ मुझे, हम सबको, हमारे बच्चे को जंक फूड से दूर रखना है, स्क्रीन से दूर रखना है, राइट? हमें हमारे बच्चे को ये सबसे दूर रखना है. अब मैं ऐसा तो क्या करूँगी जिससे मेरा बच्चा स्क्रीन से दूर रहे, या स्क्रीन टाइम टैंट्रम आ रहा है, उसको स्क्रीन रोज़ देखना है. सो आप जब पूछते हो पेरेंट्स गलत क्या कर रहे हैं, एडिंग टू दैट, बिकॉज आई वर्क एट ग्राउंड लेवल, मैं इतने पेरेंट्स से मिलती हूँ, मुझे पता है 90% पेरेंट्स बच्चों को मार रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, भूत की, बाथरूम में बंद कर रहे हैं, लाइट बंद कर देते हैं. बच्चे में वो फियर ला रहे हैं उनको डिसिप्लिन करने के लिए, विच इज़ रॉन्ग. डिसिप्लिन इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू डू. डिसिप्लिन का मतलब है कि मैं मेरे बच्चे को प्यार से समझा के रेगुलेट कर रही हूँ और मैं उसको सेल्फ कंट्रोल सिखा रही हूँ. लेकिन आज के बच्चे नहीं सुनता है ना. आई विल टेल यू. फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे बच्चे का एग्जाम्पल लेती हूँ. मुझे उसको स्क्रीन से, हमने स्क्रीन टाइम का रूल रखा है. हमारे घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है कि हम सब कुछ रूल बेस्ड बिहेवियर ही रखते हैं. रूल बेस्ड बिहेवियर, ये चीज़ क्या होता है? अब हमारे घर में हर चीज़ का रूल है. रूल नंबर 1 ये है, वी डोंट रेज आवर वॉइस इन दिस हाउस. जो भी बात करनी है, हस्बैंड वाइफ को भी बात करनी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पर हम लो टोन में रिस्पेक्टफुली पोलाइटली ही बात करेंगे, भले हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. इन आवर हाउस वी डोंट रेज वॉइस. इन आवर हाउस हम मील टाइम पे कभी भी स्क्रीन एसोसिएट नहीं करते हैं. हमारे घर में हम एवरी नाइट 1 आवर हमारा फैमिली टाइम करते ही है. दिस इज़ आवर हाउस रूल. इन दिस हाउस मम्मा पापा आर वन टीम. मम्मा ने कुछ बोला तो पापा भी सेम ही बोलेंगे. मम्मा ने चॉकलेट के लिए मना किया तो पापा हाँ कभी नहीं बोलेंगे. मम्मा पापा आर वन टीम. In this house, everybody respects each other, everybody is polite with each other. In this house, every day we have wholesome, healthy, home-cooked meals. मतलब घर का खाना. घर का खाना. ये हमारे ग्राउंड बेसिक नॉर्मल रूल्स है घर के. आपको लगेगा अरे ये तो बहुत बड़े बड़े रूल्स है. नहीं, मेरे घर में ये नॉर्मल चीज़ें हैं. बिकॉज आप जो अलाउ करोगे वो प्रिवेल होगा, है ना. मैं अगर मेरे घर में फ्राइज़ अलाउ करूँगी, केचप, शुगरी ड्रिंक्स, बिस्किट्स, पैकेट्स, मैगी, चिप्स मैं अलाउ करूँगी तो वो प्रिवेल होगा. मेरे बच्चे के लिए ये सब बहुत नॉर्मल है. श्वेता जी, मेरे पास बहुत सारे अमीर लोग का बच्चा है जो उनका पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन में करता हूँ. काफ़ी सारी, सबसे इंडिया का जितना भी अमीर फैमिली होता है उनका बच्चा बहुत होशियार है, कुरकुरे नहीं खाने का है. कल एक मम्मी मेरे को कॉल किया कि रायन सर क्या करो, दिस सन ऑफ माइन इज मैनिपुलेटिंग इवन द ड्राइवर. सो द चाइल्ड थ्रोज अ टैंट्रम. इतना टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं गाड़ी के अंदर कि ड्राइवर को गाड़ी रोकने का है, एक 10 रुपये का कुरकुरे का पैकेट खरीदने का है. व्हेन यू से रूल्स, बट देर इज द ड्राइवर, देर इज द हाउस कीपिंग, नहीं तो चाचा है, नहीं तो खुद का पेरेंट्स, मम्मी डैडी आता है और वो रूल्स. एवरीबडी हैज टू बी ऑन द सेम पेज. फैमिली रूल्स क्यों बोलते हैं इसको? दैट ये घर के रूल्स है, मम्मा पापा के नहीं है, फैमिली रूल्स है. नाउ अगर बच्चा कुरकुरे के लिए रो रहा है, उसको रोने दो. बच्चे को सिर्फ 3 चीज़ों के लिए मैं नहीं रुलाऊंगी. रोटी, कपड़ा, मकान. कपड़े उसको प्रॉपर पहनाने हैं, उसको खाना हेल्दी घर का देना है, और घर का लिविंग कंडीशन मेरे बच्चे का सही होना चाहिए. ये एज अ पेरेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसके अलावा एडिशनली अगर कोई भी चीज़ के लिए मेरा बच्चा टैंट्रम करता है,
मैं क्या बोलूँगी उसको? आई नो बच्चा, आई अंडरस्टैंड, आई नो यू वांटेड बच्चा, मम्मा इज़ विद यू, बट यू नो दिस इज़ नॉट अलाउड, यू नो द रूल्स बच्चा। मैंने मेरे बच्चे की फीलिंग्स वैलिडेट की है, एक्नॉलेज किया दैट आई नो यू वांट इट, हाउएवर दिस ऑन संडे, श्योर। तो मतलब रूल का बाउंड्री भी होता है। बाउंड्रीज। एंड मैं जब बच्चे को डिसिप्लिन कर रही हूँ, मैंने उसको डांटा क्या, मैंने मेरा वॉइस रेज किया, मैं उसके साथ एम्पथाइज कर रही हूँ, मैं उसकी फीलिंग्स वैलिडेट कर रही हूँ दैट येस मेरा बच्चा, आई नो यू वांट इट, मुझे पता है आपको चाहिए और आपको रोना है बच्चा, आप रो, मम्मा इज सिटिंग विद यू, मैं उसको सहलाऊंगी, मैं उसको प्यार करूंगी, बट बच्चा रूल्स तो मम्मा भी नहीं तोड़ सकती ना। अभी आपका काउंसलिंग सेशन, मैं सोच रहा कि ये मेरा खुद का काउंसलिंग सेशन हो। आई जस्ट अंडरस्टूड, जब मेरे पास टाइम नहीं होता है मैं गिव इन करता हूँ। परमिसिव पेरेंटिंग कर रहे हो आप। परमिसिव पेरेंटिंग मतलब क्या कर रहे हो? जस्ट टू अवॉइड टैंट्रम आप सब अलाउ करते हो कि यार मुझे बहुत काम है, ठीक है चल तू खा ले, ठीक है चल टीवी देख ले बैठ जा, लगा देती हूँ पेप्पा पिग देख ले, मेरा तो काम हो रहा है, मुझे थोड़ा शांति से बैठना है, जा टीवी देख। भाई ये तो मतलब दिस इज माय, ओह माय एंड दिस इज गॉड, नॉट यू, ये पूरी दुनिया है, एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज डूइंग दिस। एंड वो लोग फिर परेशान हो रहे कि मैम स्क्रीन टाइम, अब स्क्रीन टाइम, कोकोमेलन, पेप्पा पिग, ये सारी चीजें, हाई ग्राफिक्स, इतना मोशन, द साउंड, ये सब वीडियो गेम्स, ये सब इस साइंटिफिकली इस तरह से बनाया गया है कि मेरा बच्चा पूरा टाइम फोकस के साथ ग्रिप्ड रहे, एक सेकंड के लिए भी बच्चा इधर से उधर नहीं होना चाहिए, उस तरह से ही डिजाइन किया गया है। तो वो अडिक्टेड हो रहा है उससे। और वो अडिक्टेड क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, मेरे कन्वीनियंस के लिए मैंने बच्चे को जंक फूड अलाउ किया, चिप्स अलाउ किया, टीवी अलाउ किया, अब मेरा बच्चा अडिक्टेड हो रहा है। एंड आई एम वंडरिंग, मैं इसको डांट दूँ, मैं इसको मार दूँ, तब जाके मेरा बच्चा समझेगा, और बच्चा परेशान हो रहा है बिकॉज बच्चा इज ऑलरेडी वंडरिंग कि एक तो मैं अडिक्टेड हो गया हूँ, इसीलिए उसकी ब्रेन केमिस्ट्री में ऑलरेडी देर आर सो मैनी न्यूरॉन्स दैट आर पॉपिंग आउट अननेसेसरीली। इसको क्या बोलते हैं? मेरा नर्वस सिस्टम जो इतना इमैच्योर है, ओवर स्टिम्युलेट हो गया है। और उसमें मेरी मम्मी मुझे डांट रही है जो मेरा अल्फा फिगर है। बच्चों के लिए 0 to 7 years में हम पेरेंट्स अल्फा फिगर होते हैं। अल्फा का मतलब कि हम उनके लिए द मेन प्राइमरी पीपल ऑफ हिज लाइफ, जिनके इर्द गिर्द उसकी दुनिया घूमती है। करेक्ट। मेरे बच्चे की दुनिया मेरे आजू बाजू ही घूमेगी। अभी 7 years के बाद उनके प्राइमरी फोकस कौन हो जाता है? टीचर्स, फ्रेंड्स। ओ फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली यस। देन दे आर, उनका प्राइमरी इंपॉर्टेंट फिगर्स उनके फ्रेंड्स हो जाते हैं। देन पेरेंट्स विल टेक द बैक सीट एंड देन फॉर लाइफ टाइम फ्रेंड्स ही होंगे उनके। इवेंचुअली बाय द टाइम माई बच्चा इज 14-15, I need to have one person, one mentor in my child's life, because teenagers are hardwired to cringe around parents. उनको पेरेंट्स नहीं पसंद आते हैं। मम्मी डैडी को कुछ नहीं पता है। मम्मी डैडी को कुछ नहीं पता है, मम्मा प्लीज यार। हिंदी में एक सेइंग है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। एब्सोल्युटली राइट। हाँ। मैं जितनी भी चाइल्ड एक्सपर्ट हूँ, मेरे बच्चे के लिए तो मैं मम्मा हूँ, एंड इन दी एंड मम्मा इज घर की। मैं तो न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, माय सन डजंट लिसन टू माय न्यूट्रिशन एडवाइस। एब्सोल्युटली यस। सो कमिंग बैक श्वेता जी, आई फील लाइक आई एम इन अ लाइव काउंसलिंग सेशन विद यू कि मैं इतना मिस्टेक कर रहा हूँ, बट आई विल काउंटर यू विद वन थिंग। अभी मेरा चाइल्ड का स्टिमुलेशन हो गया, मैंने अलाउ किया, माफ़ कीजिए वो वीडियो गेम, ठीक है क्या कुछ नहीं हो जाएगा, वीडियो गेम खेलो, मैं तो थोड़ा बिजी हूँ, बिजनेस मीटिंग में पॉडकास्ट कर रहा हूँ, पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है कर दो। अभी ना उसका एडिक्शन हो गया। अभी आज श्वेता जी का काउंसलिंग मिला, मैं घर वापस जाएगा, आई कैन नो वीडियो गेम्स, राइट। Now, is that the right parenting? Absolutely not. How do I now? Absolutely how not. do I work with my kid for the next 4 or 5 years? मेरे को क्या करने का है? आपको ना सबसे ज़्यादा बच्चे के साथ में कनेक्शन पे वर्क करना है। तो कनेक्शन मतलब टाइम भी स्पेंड करना ही पड़ेगा। दैट इज अ गिवन। एज अ पेरेंट आपको एक चीज़ जो बच्चों को देना ही है इज योर टाइम। एंड आई एम नॉट सेइंग, आई डोंट मीन आई हैव अ फुल ब्लोन करियर एंड आई वर्क 8 hours a day, राइट? इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं मेरे बच्चे को मैं अपना करियर साइड पे छोड़ दूँ, सब छोड़ के मैं बच्चे के पास रहूँ। नो, इन द नाइट मैं आपको एक ब्यूटीफुल नाइट रूटीन देती हूँ जो हम फॉलो करते हैं, विच इज़
आइडियल जो सब पेरेंट्स ट्राई एटलीस्ट कर सकते हैं टू फॉलो. 8 o'clock एवरीबडी इज़ बैक होम. बच्चे अपने स्कूल से, क्लासेस से, हम ऑफिस से 8 o'clock हम आए घर पे. देन जब हम एक फैमिली मील साथ में लो, 1 meal एवरीबडी ऑन द टेबल, साथ में बैठ के खाओ. ये खाना कैसा है? कनेक्ट ओवर फूड, बिकॉज फूड इज होम. घर को, फूड को कनेक्ट करना सीखो, तभी बच्चे को वो घर के खाने की भी आदत लगेगी. हम ना फूड को हमेशा रेस्टोरेंट में यहाँ ये वहाँ वो उससे एसोसिएट करते रहते हैं, विच इज़ रॉन्ग. सो हैविंग 1 meal टुगेदर, खाना खाने के बाद और खाना खाने के टाइम पे स्कूल में क्या हुआ, मेरी ऑफिस में क्या हुआ, बच्चा आज ये प्रॉब्लम हुआ, आप सोल्यूशन दो ना, मैं क्या करूँ. तब जाके बच्चे का इमोशनल इंटेलिजेंस बाहर आता है. मैं बच्चे को मेरे प्रॉब्लम, मैं हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हूँ. मेरा 4 साल का बच्चा है अगस्त्य, में उसको प्रॉब्लम्स देती हूँ मेरे, मम्मा आप ऐसा करो ना, एंड ही जेन्युइनली गिव्स मी. समटाइम्स उसकी एडवाइस और ये सुन के आई एम लाइक डूड यू आर गुड, राइट. सो मतलब रोल रिवर्सल होना रोल रिवर्सल. दे आर नॉट मिनी अडल्ट्स, दे आर टॉडलर्स, और उनको टॉडलर्स की तरह हम ट्रीट ऐसे करें कि दे हैव सुपर पावर्स. हमारा ब्रेन जहाँ पे अटक जाता है ना, वहाँ पे उनका ब्रेन, बिकॉज देयर ब्रेन इज हाईली क्रिएटिव राइट नाउ. ऑल्सो हम लोग उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं by asking them to work with us. Absolutely. और उनका ब्रेन इन 0 to 7 years इस तरह से बना है कि राइट नाउ वो रियलिटी और फैंटेसी में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते टिल 7 years. तो उनका ब्रेन इज सो ब्यूटिफुल, फुल ऑफ आइडियाज, फुल ऑफ ड्रीम्स. तो उनसे तो आप जितना बात कर सकते हो ना, उतना उनका कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, उनका क्रिएटिव ब्रेन डेवलप होता है. सो एक मील जहाँ पे हम पूरे दिन का हमने क्या किया वो सब डिस्कस करें. आफ्टर माई मील टाइम मैं एटलीस्ट हाफ एन आवर, 8 to 8:30 डिनर किया, 8:30 to 9 हम फ्लोर पे बैठ के चारों, मम्मा पापा अगस्त्य अमारा, वी आर सिटिंग ऑन द फ्लोर, ब्लॉक प्ले कर रहे हैं, या आई एम क्रेजीली डांसिंग एंड गिविंग अ गुड लाफ टू माई फैमिली. माई किड्स आर डांसिंग और वी आर ऑल सिंगिंग आउट लाउड. एवरी डे हाफ एन आवर वी हैव डियर टाइम, DEAR, drop everything and reconnect. Wow. And वो हमारा जो फैमिली रिचुअल है, इट इज़ मोस्ट ब्यूटिफुल, बिकॉज तब अगर से ऐसी ऐसी बातें लाता है ना, मम्मा स्कूल में ये हुआ था, मम्मा ये, जो पूरे दिन में वो कभी ओपन अप नहीं होता है. तब मैंने इतना फ्री एनवायरनमेंट किया है, सब ओपन अप होते हैं. एंड दैट इज़ वेरी सेक्रेड टाइम फॉर माई फैमिली, बिकॉज हम जो इमोशनली बॉन्ड करते हैं, हम जो इमोशनली ओपन अप होते हैं, हम सब हमारी वल्नरेबिलिटीज़ हम बाहर निकालते हैं. एंड दैट्स व्हाट फैमिलीज आर फॉर. तो मुझे मेरे बच्चे को डिसिप्लिन भी करना है ना, तो मैं तब, बच्चा मुझे आपको ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा बनाना है, और बच्चा आई वॉन्ट यू टू कि मैं जो आपको खाना, मैं आपको बेस्ट खाना दूंगी, जस्ट लिसन टू मम्मा. कभी बहुत टेस्टी नहीं होगा बाहर जैसा, फ्रेंच फ्राइज जैसा, बट दिस इज़ द राइट काइंड ऑफ फूड फॉर योर बॉडी. देन आई एक्सप्लेन मसल, देखो मम्मा का ये मसल, देखो पापा का ये मसल, देखो आपका भी ये आ रहा है. मैं उसको पॉजिटिवली मोटिवेट, इंस्पायर करती हूँ मेरे बच्चे को. आई डोंट इम्पोज, आई इंस्पायर. डोंट इम्पोज, इंस्पायर. एब्सोल्युटली यस. सो बहुत सारे पेरेंट्स ना थोपते हैं, हाँ. ये करना है, क्यों करना है बच्चा, बिकॉज बच्चा पूछेगा ना क्यों करना है. सो मैंने बच्चे के साथ में डियर टाइम किया. एंड देन नाइट रूटीन में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हमें करना है. नंबर 1, फिजिकल पे वर्क करना है, मेंटल एंड इमोशनल. 9 to 10 में ये मेरा बच्चे का 3 एस्पेक्ट में मैं वर्क करूँगी. कैसे? फिजिकल, शावर, ब्रश, सो क्लीन, हाइजीन, दैट इज़ डन. देन मैं करूँगी उसका मेंटल किस तरह से, रीड अ बुक टू योर चाइल्ड और टेल सम, आपकी स्टोरी बताओ, कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बेड में लेट जाओ एंड शेयर सम स्टोरी, रीड सम बुक. द बेस्ट वे टू बिल्ड इमोशनली रेजिलियंट चाइल्ड, वेल स्पोकन चाइल्ड इज रीडिंग अ बुक एवरी नाइट, सोने से पहले. और बच्चे को आदत होनी चाहिए, कलेक्शन ऑफ कार्स नहीं होना चाहिए, उसके पास कलेक्शन ऑफ बुक्स होना चाहिए. और वो कहाँ से आएगा? पेरेंट्स से ही तो सीखेगा. सो एवरीथिंग, मुझे पेरेंट्स जो भी कंप्लेन लेके आता है ना, मैम मेरे बच्चे में ये कमी है, पेरेंटिंग इज़ नेवर अबाउट योर बच्चा, पेरेंटिंग इज़ अबाउट पेरेंट्स. आपने जो गलत किया है वो बच्चे में गलत हुआ है,
और आप जो सही करोगे वो आपके बच्चे में रिफ्लेक्ट करेगा. एंड लास्ट थिंग, मैं इमोशनली कैसे मेरे बच्चे को रेजिलियंट बनाऊंगी इज़ सोने से पहले मैं मेरे बच्चे को इमोशनली काउंसिल करूं. कैसे इमोशनली काउंसिल करूं? पूरा दिन मैंने देखा मेरे बच्चे ने ये गलत किया, ये सही नहीं हुआ. पूरा दिन इफ आई एम कॉन्स्टेंटली उसको चिक चिक करते ही विल गेट इरिटेटेड एंड सिलेक्टिव लिसनिंग स्टार्ट कर देगा. एंड आफ्टर अ पॉइंट, मम्मा प्लीज़, आप तो पूरा टाइम लेक्चर ही देते रहते हो. डू आई वॉन्ट टू बिकम दैट मॉम? नो. डू आई वॉन्ट टू डू दैट टू माई चाइल्ड? नो. वॉट आई वॉन्ट टू डू इज़ बच्चे को पूरा दिन ऑब्जर्व करूँगी. सिर्फ सोने से पहले जब हम इमोशनली कनेक्टेड है, जब रूम इज़ ठंडा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तब मैं मेरे बच्चे ये हुआ था, हमें ऐसे करना है ना बच्चा, यू आर माई सबसे चैम्पियन बच्चा, यू आर मैनरफुल, आप में कितनी मैनर्स है. और बच्चे, जिन बच्चों में मैनर्स होता है ना, वो ऐसा नहीं करते. ये मैनरलेस बच्चे करते हैं. आप में कितनी अच्छी मैनर्स हैं, राइट? सो एज आई सेड, मैं बच्चे को पॉजिटिवली डिसिप्लिन कर रही हूँ थ्रू इमोशनल काउंसलिंग. मैं उसकी इमोशनल कोच हूँ. मैं उसकी मम्मी नहीं हूँ, मैं उसकी फ्रेंड नहीं हूँ. मैं उसकी इमोशनल कोच हूँ जो उसको कॉन्स्टेंटली गाइड कर रही है. बिकॉज बच्चा नीड्स गाइडेंस, और मैं जितना गाइड करूँगी उतना ही आने वाला है मेरे बच्चे को. एंड लास्ट थिंग बिफोर स्लीपिंग इज अफर्मेशंस. I'm strong, I'm confident, I love to make new friends, I love eating healthy food, I love my school, I love to study new things, I'm a curious kid. और अफर्मेशंस के 3 रूल्स हैं जो हमें बहुत ध्यान से समझने हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं. बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं, मैम हम तो अफर्मेशंस बोलते हैं बट हमारे साथ वर्क नहीं करता. क्यों नहीं करता? बिकॉज आप ये 3 रूल्स फॉलो नहीं करते. नंबर 1, अफर्मेशन हैज़ टू बी इन प्रेजेंट टेंस. आई एम हैप्पी, आई विल बी हैप्पी नहीं, आई एम. सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करेंगे. वर्तमान, भविष्य और भूतकाल. वर्तमान, राइट? सेकेंड इज, आप जब अफर्मेशंस बोलो तो नॉट, नो नहीं बोलना है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोल दूँ, रैन प्लीज डू नॉट थिंक ऑफ अ ब्लू माउंटेन. मैंने सोचा ब्लू माउंटेन. डू नॉट थिंक ऑफ चीजबर्स्ट पिज्जा फ्रॉम डोमिनोज. डू नॉट थिंक ऑफ अ हॉट पिंक कार. आपने हर एक चीज़ सोचा बिकॉज ये सबकॉन्शियस माइंड नो नॉट रजिस्टर नहीं करता है. सो हमें आई एम नॉट सैड नहीं बोलना है, हमें आई एम हैप्पी बोलना है. एंड नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर अफर्मेशन, वो कैसे वर्क करेगा? आई हैव टू फील इट. माई इमोशंस के साथ मुझे बोलना है फॉर इट टू मेक इट द वे टू माई सबकॉन्शियस माइंड एंड फॉर मी टू मैनिफेस्ट इट इन माई लाइफ. मुझे क्या करना है? फीलिंग के साथ बोलना है. आई am a great learner, I love going to school, I am a champion. जब मेरा बच्चा फील करता है तभी उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा. एंड सोने से पहले का 1 आवर इज कॉल्ड अ वेरी पावरफुल मैजिक आवर. क्यों? बिकॉज जो चीज़ें मैंने सोची है मेरे माइंड में एकदम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली मैंने रीइंफोर्स की है, इट मेक्स इट वे टू द सबकॉन्शियस माइंड. एंड डीप स्लीप में वो सारी चीज़ें इम्प्रिंट होती है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में. और नेक्स्ट डे जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे एक सटल मैसेज वो भेजता है, यू आर अ चैम्पियन, यू कैन डू इट. जब भी मुझे डाउट आता है ना खुद पे, माई सबकॉन्शियस माइंड इज गोइंग टू सेंड मी दैट सिग्नल्स, भाई आप तो चैम्पियन हो, करो. तो ये सो दिस इज द आइडियल नाइट रूटीन जो बच्चे के साथ हमें फॉलो करना है. श्वेता जी, मॉर्निंग का रूटीन? अब सुबह बच्चा, जैसे हम स्कूल के लिए उसको उठना है, उसका बस आ रहा है सपोज 8 o'clock, तो हम क्या करते हैं एज पेरेंट्स, चल बच्चे को ज़्यादा सोने देते हैं और मैं उठाऊंगी उसको एकदम 7:30 पे और उठ के भागो 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 भागो, उठो उठो उठो. नो, आप बच्चे को प्लीज़ थोड़ा जल्दी उठाने की आदत डालो और थोड़ा जल्दी सुलाने की आदत डालो और उसको प्यार से उठाओ, झटके से मत उठाओ. बच्चा लेट्स वेक अप, इट्स मॉर्निंग टाइम, एंड प्यार प्यार से उठाओ बच्चे को, सो दैट उसका जो ब्रेन इज़ इन थीटा मोड, उसको अल्फा मोड में आने के लिए थोड़ा टाइम दो. बिकॉज मॉर्निंग के जो 5 minutes हम जब उठते हैं ना, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज स्टिल वेरी एक्टिव. और उठते से ही सीधा बच्चे को बॉम्बार्ड करोगे ना, तो हम उसका सबकॉन्शियस माइंड पावर टैप नहीं कर पाएंगे. और एंग्जाइटी भी ज़्यादा होता है. होता है मेरे बच्चे के, उसमें एंग्जाइटी चला जाएगा, स्ट्रेस चला जाएगा और वो सिग्नल्स पूरा दिन उसके बॉडी में रहेंगे. पर अगर मैं उसको एकदम आराम आराम से उठाती हूँ, प्यार से उठाती हूँ, बच्चा आई मिस्ड यू व्हेन यू वर स्लीपिंग, और एज अ मदर आई नीड टू वेक अप और 15 minutes अर्ली.
हम क्या करते हैं, मैं ही लेट उठी और बच्चे को भी मैंने लेट उठाया, मैं भागी, बच्चा भागा और सुबह तो मेरा घर केओस है। ऐसा मत करो। रादर मैं बच्चे को आराम आराम से उठाऊं, मैं भी जल्दी उठ के, एंड देन उठते से ही अगेन पॉजिटिव अफर्मेशंस, और बच्चे को पूरे दिन में जो होने वाला है उसका एक प्रीव्यू दे दो। आज ये होने वाला है, आज हम ये करने वाले हैं, आज हम यहाँ जाएंगे, तो बच्चा इज़ मेंटली प्रिपेयर्ड। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपन्स दैट मेरा बच्चा इज़ मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता, उसको सरप्राइज आता है, किड्स कैन नॉट टेक इट वेल एंड हैंस टैंट्रम्स आते हैं। सो बच्चे को मेंटली एक प्रीव्यू दे दो कि आज ये होने वाला है आपके दिन में। फॉर यंगर किड्स 0 to 7 years में स्पेशली इट वर्क्स, राइट। एंड देन एक ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग। जब बच्चा खा रहा है तो खाते टाइम प्लीज़ टीवी मत देखो, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप बच्चे के साथ में कनेक्ट करो। यूज़ ऑल ऑफ दीज टाइम्स विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कि मैं बच्चे के साथ में कनेक्ट कर रही हूँ तब, एंड देन मैं अच्छे से तैयार करके बच्चे को स्कूल के लिए सी ऑफ कर रही हूँ। और ये सब कुछ रूटीन बहुत ज़्यादा स्मूथ ईजी होना चाहिए। बिकॉज आई बिलीव सो मच इन मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन। मैं रोज़ मेरे बच्चे को स्कूल जाने से पहले 3 minutes ब्रेथ वर्क्स करवा के भेजती हूँ। ओम चैंटिंग, ब्रीद इन ब्रीद आउट, प्राणायाम, ये कपाल भाती मैं करवा के ही भेजती हूँ। एंड तब मेरा बच्चे का ब्रेन वायरिंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड ही इज़ रेडी टू टेक द वर्ल्ड, बिकॉज उसकी पूरी एनर्जी इतनी चैनलाइज्ड है। करेक्ट। एंड ये 3 minutes का मेडिटेशन का इम्पॉर्टेंस हम तब तक नहीं समझेंगे जब तक हम रेगुलरली 30 days करेंगे, एंड वी विल सी द मैजिक इन आवर सेल्स, और हमें पता चलेगा यार आई कैन नेवर गो बैक। मैं आई यहाँ पे कार में, 1 hour की मेरी राइड थी, 3 minutes मेडिटेशन करना ही है। एंड ये सारी चीज़ें सालों से चलती आ रही है, एंशिएंट विजडम, वी हैव टू पास इट ऑन। हम मॉडर्ननेस के चक्कर में बहुत सारी गलत चीज़ें कर रहे हैं, रूट्स नहीं भूलने हैं। मॉडर्ननेस लाओ, इट्स गुड, बट एंशिएंट विजडम को लेके चलना है आगे। एंड दिस इज़ वॉट विल मेक माई आइडियल रूटीन for my bacha in the morning. By the way, if you're listening to this and wondering how to improve your health, I've got something really special for you. I have launched my brand new nutrition app that's designed to simplify your health journey, where you get personalized diet plans, easy to follow recipes, and a snap and track feature where you can simply click a photo of your meals and track your progress instantly. And here's the best part, you don't need to run around to shop for your diet essentials. The app connects you to everything you need, so you save time and stay on track. The first 100 of you will get a free custom diet plan on the Ryan Fernando app. Download now, the link in the description. तो श्वेता, मेरा खुद का बेटा है 11 years old. Now I have to talk to him about the birds and bees, sex education की बात करने का है, सोशल मीडिया, और इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, तो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो 18 years तक वो बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो सेक्स, ड्रग्स, अल्कोहल, दिस फियर इज़ ऑलवेज देयर इन माई माइंड कि हमारा जो छोटा बच्चा, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अगर इफ़ आई टेल माई सन समथिंग, सो व्हाट कुड बी द वेज जहाँ हम पेरेंट लोग बच्चे के साथ की ध्यान रखने का है, या शुड वी एडुकेट देम, हाउ डू वी हैव द कॉन्वर्सेशन, मेरे को क्या करने का है? सबसे पहले लॉट ऑफ पेरेंट्स थिंक कि टॉकिंग अबाउट ड्रग्स, टॉकिंग अबाउट सेक्स, टॉकिंग अबाउट सब्सटेंस, ये सब टैबू है, तो पेरेंट्स बात ही नहीं करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। पेरेंट्स को एक ओपन डायलॉग विद किड्स होना चाहिए, एंड ये एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और ये स्टार्ट होगा फ्रॉम अ यंग एज। मेरा बच्चा 2.5 साल 3 साल का है, तब से मैं उसको गुड टच, बैड टच, क्या प्राइवेट पार्ट्स है, ये सब समझाना स्टार्ट कर दूँ। इट ऑल स्टार्ट्स विद दैट, राइट। देन जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, मैं उसको बात करना स्टार्ट करूँ अबाउट गर्ल्स एंड बॉयज़, जेंडर, किसका क्या कैसे डेवलप होता है, बिकॉज किड्स आर क्यूरियस कि हमारे बॉडी पार्ट्स कैसे डेवलप होते हैं, राइट। सो दे वांट टू नो अबाउट। सो मैं हर एक चीज़ मेरे बच्चे को अगर एडवांस में बता दूंगी, सेक्स क्या होता है, कैसे होता है, व्हाट इज़, क्यों हमें क्यूरियोसिटी होती है,
देन वेप्स आ जाते हैं स्कूल में अभी तो सो मेनी किड्स आर कंज्यूमिंग वेप्स लाइक इलीगली इन स्कूल एंड एट अ वेरी यंग एज. तो अगर मैं मेरे बच्चे को एट अ यंग एज बता दूं कि बच्चा ये सब है, ये सब होगा, यू विल कम अक्रॉस इट, पहले से बता दिया है, तो बच्चे को उसका क्या क्या नुकसान है, हमें क्यों नहीं करना है, हमारी फैमिली कैसी है, हमारा लाइफ का विजन क्या है, हम ये सारा अगर बच्चे को एक मैपिंग दे देंगे ना, तब मेरे बच्चे को एक क्लियर आइडिया रहेगा कि ओके ये सब है. और कभी उसका कोई फ्रेंड उसको ला के देगा ये सब, तो उसको कभी ये चीज़ एक्साइट नहीं करेगा, बिकॉज ही नोज़ अबाउट इट. और उसको थरली थ्रू एंड थ्रू मैंने सब कुछ बैठ के बताया है. नाउ आप बोलोगे एज अ पेरेंट मैं बच्चे के साथ में, बच्चा मुझे सुनना नहीं चाहता, बच्चे को ये मेरे साथ बात नहीं करना है, इसीलिए आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन हो जो आपके बच्चे के एक मेंटोर तरीके से काम कर सके. हु कुड बी द गॉड फादर, हु कुड बी द गॉड मदर टू योर चाइल्ड, जो आपकी फैमिली में है, जो आपके ट्रस्टेड क्लोज वन में है, जो योर बच्चा ऑल्सो लुक्स अपॉन दैट पर्सन. ऐसा अगर कोई पर्सन आप आइडेंटिफाई कर सको जो आपके बच्चे से बात कर सके, बिकॉज एज पेरेंट्स वी विल डू एवरी पॉसिबल थिंग इन दिस वर्ल्ड कि मैं मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करूं, बट स्टिल पेरेंट्स की बात इतनी स्ट्रांगली नहीं जाएगी जो एक मेंटोर की बात जाएगी, जो बच्चे के मे बी स्कूल में या कोई कोचिंग क्लास में बच्चा लुक्स अपॉन. तो उनको हम एज अ ये इसका सिग्नल कैसा मिलेगा? मतलब आप बच्चा शुड कनेक्ट विद दैट पर्सन और वी शुड गो हंटिंग फॉर दैट पर्सन, कैसा करने का है? यू विल फाइंड इट अलॉन्ग द वे. और कौन सा उम्र में करने का है मेंटर? 14? सी बच्चे की लाइफ में ना 3 sevens आते हैं. हाँ. फर्स्ट 7 इज 0 to 7 years, जहाँ पे पेरेंट्स आर प्राइमरी. जितना ज़्यादा हम इमोशनल प्ले, इमोशनल इन्वेस्टमेंट बच्चे के साथ कर सके, जितना ज़्यादा टाइम एनर्जी इमोशंस पे वर्क कर सके, सो दैट 0 to 7 years. 7 to 14 years आ गया जहाँ पे मेरा बच्चा अकेडमिकली ग्रो हो रहा है, ही इज़ अंडरस्टैंडिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, हु एम आई, उसका ये सब डेवलप होना स्टार्ट होगा. अकेडमिक्स उसका बेस बन रहा है ये टाइम में, तो उस पर फोकस करना ज़रूरी है. एंड 14 to 21 years है जहाँ पे मुझे मेंटोर चाहिए बच्चे के लिए, जहाँ पे उसका फेज़ है ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, जब उसको ट्रू उसकी आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है. मैं कौन हूँ? ही इज़ फाइंडिंग हिमसेल्फ इन दिस वर्ल्ड. मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, व्हाट आई लाइक, व्हाट आई डोंट लाइक, मेरा नेचर कैसा है. बिकॉज तब उसका ब्रेन इज़ मच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पीपल एंड अंडरस्टैंड हिमसेल्फ ऑल्सो. तब बच्चा थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी सीख जाता है, बिकॉज उसका ब्रेन उतना डेवलप हो जाता है. और तब मैं मेरे बच्चे को अगर एक मेंटोर दूंगी, और एज अ पेरेंट ऑल्सो, मैं पेरेंट ना बन के मेरे बच्चे के साथ में एज अ फ्रेंड कनेक्ट करूँगी, तब इट्स गोना वर्क द बेस्ट वे. एंड हर चीज़ मैं मेरे बच्चे को एडवांस में बता दूँ. बिफोर द वर्ल्ड टेल्स माई बच्चा, आई टेल माई बच्चा. बिफोर द वर्ल्ड इंट्रोड्यूसेस, आई इंट्रोड्यूस. रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी डैडी का है या दोनों को शेयर करने का है बताने के लिए बिफोर द वर्ल्ड टेल्स? सी आई थिंक मॉम डैड दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट यू कैन चूज बच्चा ये टॉपिक में किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, एंड यू टेक द लीड अकॉर्डिंगली. माई सन इज़ मोर कंफर्टेबल विद मी, I will talk to him. My daughter is more comfortable with father, he will talk. And घर पे to talk about periods, to talk about sex, father talking to daughter about, ये कुछ भी टैबू नहीं होना चाहिए कि फादर कैसे डॉटर के साथ सेक्स के बारे में बात कर सकता है. नो, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन वेरी बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली, एंड इट इज़ ओके. यू आर जस्ट मेंटोरिंग. आई थिंक हम लोग पेरेंट्स लोग वी आर वेरी शाई, शर्माते हैं, वी डोंट वांट टू टॉक टू आवर चिल्ड्रन एंड वी कंपार्टमेंटाइज बॉय टू बॉय, गर्ल टू गर्ल काइंड ऑफ थिंग. या विच इज रॉन्ग. चाइल्ड एंड पेरेंट, नॉट मॉम एंड डॉटर, नॉट सन एंड फादर. इट इज पेरेंट टू चाइल्ड. तो आप चाइल्ड एक्सपर्ट है, तो आप बोल रहे हैं कि ये कुछ दिक्कत नहीं, इट्स नॉट टबू, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. एब्सोल्युटली नॉर्मल, 100%. एंड वी एनकरेज, please come forward, step forward and talk as a family. It is absolutely okay to father talking to daughter about periods
Why not? It's a very natural biological process. Why do we have to like hide it or keep it under the wraps? और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैमिली डायनामिक्स या इमोशनल डायनामिक्स में वर्क करेगा. So this is amazing advice, Shweta. Anxiety, depression. आज के दिन जेनजी मेरा कंपनी के अंदर आता है, सब लोग बोलते हैं मेरा बहुत स्ट्रेस है. क्या ये चीज़ बाद में हो रहा है या in the younger years it is happening? Is it the fault of the child or the parent? आपका टेक क्या है कि डिप्रेशन एंजाइटी कम करने के लिए हम लोग नया पेरेंट्स जो है क्या करने का है? सबसे पहले तो स्ट्रेस एंजाइटी ऐसा कुछ नहीं है कि अभी नया नया कुछ आया है. तभी भी एग्जिस्ट करता था, हमें पेरेंट्स को भी था, हमें भी था, हमारे बच्चों में भी आएगा, राइट. बट इट्स जस्ट कि अब ना कॉन्टेक्स्ट और ट्रिगर्स बदल गए हैं. और अभी सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है स्ट्रेस एंड एंजाइटी का? कैन यू टेल मी? एजुकेशन? नो. सोशल मीडिया? Yes, technology, social media is the biggest trigger of stress and anxiety because people are over posting, people are over consuming social media. हमें फोमो हो रहा है, हमें जो बात को लेके स्ट्रेस और एंजाइटी होना ही नहीं चाहिए, हमें जिस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, वो बात मेरे ब्रेन में सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है. एंड दैट इज़ वाई वी जस्ट स्पोक के हम पोस्ट एंड घोस्ट करते हैं. आप सोशल मीडिया पे कितने मिनट? 3 मिनट रहते हो दिन में? मैं 10-15 मिनट्स रहती हूँ सोशल मीडिया पे. दैट्स इट. आई पोस्ट एंड घोस्ट, राइट. एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. सोशल मीडिया अगर काम के लिए यूज़ करना है तो करो, अदरवाइज रियल लाइफ में रियल फ्रेंड्स, पिक अ फोन, कनेक्ट एंड दैट्स इट, राइट. सो सोशल मीडिया की वजह से बहुत स्ट्रेस हो रहा है. अकेडमिक प्रेशर है, ऑफकोर्स वो भी हो रहा है. साइबर बुलिंग इतना हो रहा है, राइट, विच यंग किड्स आर नॉट एबल टू हैंडल. रिसेंटली कितने केसेस ऐसे आए जिसमें टीनेजर्स आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज दे फेल इन लव विद एन AI कैरेक्टर. ओह गॉड. सो आप रिसर्च कर सकते हो. देयर आर सो मेनी केस स्टडीज. Young boys committing suicide after falling in love with the AI character online. So, and this world is a scary world. जो AI का world है बहुत scary है और हमें हमारे बच्चों को protect करना है. और इसीलिए घर में फैमिली रूल्स होना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बच्चों के साथ में इमोशनल कनेक्ट होना ज़रूरी है. इसीलिए मैं बच्चे को डांट के पनिशमेंट ना करूं बट एक पॉजिटिव डिसिप्लिन करूं, मेरे बच्चे को इंस्पायर करूं. और स्ट्रेस क्या आ रहा है मेरे बच्चे को कि पेरेंट्स आर गुस्सा कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं. और मेरे बच्चे में कुछ बॉडी में ऑलरेडी स्ट्रेस सिम्टम्स है बट पेरेंट्स आर सो बिजी दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई. वेरी यंग एज, राइट. मेरे पास में इतने यंग बच्चे आते हैं 6 years 7 years के जिनको एंग्जाइटी है. एंड इट्स नॉट जस्ट एंग्जाइटी कहने के लिए, क्लिनिकल एंग्जाइटी है एज यंग एज 5 years 6 years. अब बोलो ये बच्चे को तो सिर्फ खेलने चाहिए ना. देयर जॉब इज टू प्ले एंड दैट्स इट. वाई? बिकॉज पेरेंट्स आर ओवर स्केड्यूलिंग इनका रूटीन. यहाँ जाओ, वो जाओ. मुझे बचपन में मेरे बच्चे ये डांस क्लास, वो डांस क्लास, एब्सोल्युटली ओवर स्केड्यूल्ड है मेरा बच्चा. उसके पास टाइम ही नहीं है मेरे बच्चे के पास. एंड मैं एज अ पेरेंट इतनी बिजी हूँ दैट आई एम सो हैप्पी दैट चलो मेरा बच्चा भी बिजी है, मैं भी बिजी हूँ. और मेरे इतने नन्ही सी जान में, उसके बॉडी में इतने स्ट्रेस सिम्टम्स है बट बिकॉज आई एम सो बिजी आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट ऑल्सो एंड आई एम नॉट एबल टू वर्क ऑन दैट. और वो स्ट्रेस जो मेरे बच्चे के बॉडी में है वो इज ऑफ कोर्स गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू हिज ब्रेन. कॉर्टिसोल बन रहा है, उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है. माई बच्चा इज़ नॉट एबल टू हैंडल सोशल स्किल्स, उसकी बढ़ नहीं रही है. उसका इमोशनल रेगुलेशन गॉन फॉर अ टॉस. पूरा टाइम मेरा बच्चा चिड़ा हुआ रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है. मेरा बच्चा ओपन अप नहीं हो पा रहा है. तो ये एक प्रॉब्लम होता है, मैंने देखा कि माई फैमिली, एनी फैमिली, कि भाई अगर बच्चा बिजी नहीं है तो वो वीडियो गेम्स खेलेगा, सोशल मीडिया के ऊपर जाएगा. अगर बिजी है तो माइंड इज़ ऑक्यूपाइड. बट आप बोल रहे हैं कि इतना प्रेशर हो रहा है कि कभी कभी एंग्जाइटी भी हो सकता है. तो हमारा मिडिल लाइन कहाँ है? मिडिल लाइन इज दैट यू एंगेज विद योर बच्चा. And I think we need to spend more time with द बच्चा, टू कनेक्ट विद द बच्चा.
मीनिंग ये तो गलत ही है ना कि अगर स्कूल नहीं है, क्लासेस नहीं है और अगर बच्चा घर पे है तो बच्चा बोर हो रहा है, और बोर हो रहा है तो क्या करना है? टीवी या वीडियो गेम खेलना है. व्हाट इज दैट लॉजिक? देयर आर सो मेनी अदर वेज to utilize your time. There are so many beautiful books in the world. There are so many games. Or they go down to play. The outdoors. In this day and age, आप मुझे अगर पूछोगे what is the most vital play in a child's day, most vital activity जो बच्चे को करना चाहिए, top of the chart is outdoor activities. Grounding effect, Mother Earth, उस पे it just calms you down. जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बॉडी में जाएंगे फ्रॉम मदर नेचर, फ्रॉम मदर अर्थ, इट इज गोइंग टू रेगुलेट योर एंटायर नर्वस सिस्टम. नीचे जाओ, बाहर जाओ, बी आउट इन दी ओपन. सो ये टीवी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. एंड एज अ पेरेंट यू नीड टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ इको सिस्टम फॉर योर चाइल्ड, जहाँ पे मैं उसको ये प्रमोट कर सकूँ. या DIY आर्ट फाइन मोटर स्किल्स के लिए, ग्रॉस मोटर के लिए आउटडोर्स किया, फाइन मोटर के लिए मैंने कुछ आर्ट किया, या घर पे अगर है तो एंगेज योर बच्चा इन सम कुकिंग, बेकिंग. दैट ऑल्सो एनहेंसेस टीम वर्क है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नर्चरिंग का फीलिंग है. एंड ऑल ऑफ दीज इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स मेरे बच्चे की इमोशनल वोकैबुलरी कैसे बढ़ेगी? बाई डूइंग दोज थिंग्स, बाई एक्सपीरियंसिंग दोज थिंग्स. मैं बच्चे को बोल दूंगी ये हैप्पी, सैड, ये सब सिखा दिया, उससे कुछ नहीं होगा. एक चार्ट में देख के ये स्माइली कौन सा, ये हैप्पी स्माइली, ये सैड स्माइली, उससे कुछ नहीं होगा. मुझे बच्चे को एक्सपीरियंस करवाने हैं दीज इमोशंस, एंड एक्सपीरियंस करके रेगुलेट करना सिखाना है. ऐसा नहीं है कि आप कोई फीलिंग फील नहीं कर सकते. यू कांट बी एंग्री, यू कैन बी एंग्री, बट आई विल टीच यू हाउ टू रेगुलेट योर एंगर, है ना? So this is amazing. Anger को regulate करने का is keep the child engaged, more time from parents. Recently एक mother father दोनों मेरा nutrition का plan कर रहा था. Mother was from boarding school. Father was from joint family. अब उनका बच्चा है, 2 बच्चा है. तो mother बोल रहे मेरा बच्चा boarding school जाएगा, और बोल रहा है कि सबसे बेस्ट वाला जो चाइल्ड आएगा डिसिप्लिन बोर्डिंग स्कूल से आएगा. हस्बैंड मेरे को बोल रहे हैं भाई मेरा बीबी ने देखा इतना रूल्स बनाया, इतना स्ट्रेस है, इतना एग्जैक्टली, इतना रन 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 रन, मेरा बच्चा तो घर में रखने का है, प्यार देने का है. मैं तो वहाँ बैठ रहा था और सोच रहा कि मेरा बच्चा 11 ईयर्स का एज, क्या मैं उसको बोर्डिंग स्कूल भेजेगा, क्या मैं उसको घर में पैदा करेगा? व्हाट शुड आई डू श्वेता? वेरी सब्जेक्टिव. Very subjective. As a parent, what do you see for your child? अगर आप मुझे पूछोगे ना अभी, because my kids are so young, I don't know. I will see when they are of that age. Boarding schools normally take children from 11, 12 years. Correct. I will, Look when at I it at get that there, time. I will see. It's very subjective. What do you want for your child? Do you want कि मेरा बच्चा आउटसाइड ऑफ घर के एनवायरनमेंट में रह के, वहाँ पे रह के सब सीखे, और डू यू वांट के नहीं ये फॉर्मेटिव ईयर्स है और ये ईयर्स में मुझे मेरे बच्चे को यहीं पे तो मेरे बहुत पास रखना सब्जेक्टिव है, कोई Very आंसर subjective. नहीं है. कोई आंसर नहीं है. एज अ पेरेंट व्हाट यू फील यू शुड डू दैट. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आफ्टर 18 बच्चे एनीवे घर के बाहर चले ही जाने वाले हैं. They are never going to, and they're still developing till 25. They're so still they have a developing chance. till 25. And no matter अगर school is good, वहाँ पे of course these schools now take a lot of care for their emotional well-being True, also. True. In fact मेरा क्लिनिक के अंदर एक जो पीडियाट्रिक केस आ गया, वो बच्चा बहुत ज़िद्दी था, अनकुट था, मैनर्स ही नहीं था, और एक साल के अंदर वो बैंगलोर आ गया, एक बोर्डिंग स्कूल गया. 6 महीने के बाद वो सेम बच्चे मेरे काउंसलिंग रूम के अंदर आ से, गुड मॉर्निंग मिस्टर रायन, हाउ आर यू टुडे? मैंने ऐसा कुछ ये बंदा कौन है? Who is this genius Who is this guy? right? And मतलब इतना चेंज हो गया, उनका पेरेंट्स इतना खुश हो गया कि दूसरा बच्चा भी बेच दिया. Yep. बट आई ऑल्सो हैव हॉरर स्टोरीज वे बच्चे बोर्डिंग स्कूल के अंदर जाता है और इतना रिबेलियस होता है. Yup, absolutely. I have same 2 different sets of so many stories. So there is no fixed rule. There is no fixed rule. We have to figure it out. And what works for your child may not work for my child. चलो, let's get into the kitchen with children. मैं हमेशा सब पेरेंट को बोलता है कि हफ्ते के अंदर एक बार
एक जूस या स्मूदी या एक डिश आपके पेरेंट आपके बच्चे के साथ दोनों साथ में कर दो. क्या बात है. वेरी In your house, what are the superfoods that you love to give your kid? I know this is my subject, but you are a mom and then you are a child expert. What do we see on Shweta ji's family table and plate? And you talked about disciplining. My God. So I am a hardcore home cooked food mom. मेरे घर पे डिपार्टमेंटल स्टोर में जो मिलेगा वो मेरे घर के दरवाजे के अंदर नहीं आएगा. Anything that is packaged, processed, sugary, or it has any kind of packaging done. Meaning it has gone processed. No, what is that? Coloring, food processing, Absolutely. color. So मेरा fundamental मैं आपको समझाती हूँ. From farm to table, right? Great. Farm to factory and then to table, then it's a no. Anything that has gone to factory and then it's coming to my house is a no. अब आप फैक्ट्री में आप समझ जाओ, उसमें कैन जूसेस, उसमें सूप्स, उसमें जो भी द फ्राइज, केचप, फिर उसमें इंस्टेंट नूडल्स, सीरियल्स, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. Actually, Shweta ji, the thought came into my head as you're speaking कि मैंने एक टैगलाइन बनाया, योर बॉडी इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट. अभी तो दिमाग के अंदर क्या बत्ती जलाया, योर चिल्ड्रन आर योर मोस्ट वैल्यूबल एसेट. एब्सोल्युटली. विल यू फीड देम फ्रॉम अ फैक्ट्री और यू विल फीड देम फ्रॉम अ फार्म. एब्सोल्युटली. एंड मैं अगस्त को एक विजन देती हूँ, बच्चा मुझे आपको ऐसा बनाना है. मैं उसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फोटो दिखाती हूँ और एक ओबीस गाय का, और मैं उसको आपको क्या बनना है, मम्मा आई वांट टू बिकम CR, एंड देन आई टेल. तो ये बनने के लिए बच्चा दिस इज द रोड मैप. आपको ये खाने का, ये ऐसा बिहेव करने का, आपका ये रोड मैप है. और ये कभी कभी इट्स ग्रेट बच्चा. इवन आई से वो कभी कभी वी शुड एंजॉय, बट टू गेट टिल हियर दिस इज द रोड मैप. तो मैं मेरे बच्चे को लॉजिकली समझाती हूँ एंड मैं उसको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ हम ये क्यों कर रहे हैं. यू डोंट ईट हेल्दी बिकॉज आई सेड सो. You do it because there's a reason behind it. Because mama has, a plan and I want to align you in this plan. तो हम aligned रह के करेंगे तो मज़ा आएगा and it'll be easy for you and for me to do this. Super duper. Any secret foods that you put on your children's plate? Yeah, it is very simple. My बच्चा will every day में vegetables, fruits, nuts, seeds and grains. ये सारी चीज़ें in 30% proportion and 10% of fats होता ही है. Means proteins, carbs, fibers, fats. और अगर The plate is made like that only. और अगर आपका चिल्ड्रन पूछता है कि मम्मी मेरे को पिज्ज़ा चाहिए या बाहर का खाना चाहिए, तो पिज्ज़ा तो हम घर पे ही वी बेक द पिज्ज़ा. एंड आई टेल हिम बाहर के पिज्ज़ा जितना यमी नहीं होगा हमारा होम बेक्ड पिज्ज़ा, बिकॉज इट्स मेड ऑन द डो दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ किनोआ एंड व्हीट एंड जोआर. मल्टीग्रेन डो है विद लॉट्स ऑफ टॉपिंग्स, लॉट्स ऑफ वेजीज. चीज़ नहीं है उसमें, होममेड पनीर है. तो ऑफकोर्स इट्स नॉट एज यमी बट इट्स अ सुपर पिज्ज़ा, सुपर हेल्दी. एंड हम दोनों ने साथ में मिलके बना के बेक किया है. एक्चुअली मेरा बच्चा मैं क्या बोलता है कि बॉस लुक आउटसाइड दिस एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग, ये लोग आपके सिर के ऊपर टोपी डालता है, तो आपको सोचने का कि क्या आप होशियार है, टोपी पहनने का है कि नहीं पहनने का. एब्सोल्युटली. एंड देन माय सन विल बी लाइक पापा चेक दिस आउट, देयर इज सो मच ऑफ शुगर इन दिस ऑरेंज जूस, व्हाई डिड यू बाय इट. तो कभी कभी मैं न्यूट्रिशनिस्ट में गिल्टी फीलिंग करते आ रहे यार, सुबह में कौन फ्रेशली स्क्वीज ऑरेंज जूस बनाएगा, एक टेट्रा पैक 100% प्योर ऑरेंज जूस रखेगा. लेकिन वो सोचे पापा देयर इज अ प्रिजर्वेटिव इन दिस. सो आई थिंक जो न्यूट्रिशन वाला चीज़ होते हैं ना, बच्चे को अगर हम लोग अवेयरनेस सिखाएगा, दे विल गेट much more smarter than us. So my child is 4-year-old and he understands, मम्मा इसमें शुगर है, ये हेल्दी नहीं है. He understands and all of this training starts early. And I as a parent, I take the responsibility. मेरा बच्चा ये कुछ सीख के नहीं आया है या बाहर किसी ने नहीं सिखाया है. What I allow in my house, जो मैंने उसको सिखाया है, बच्चे को उतना ही आता है. Have I taught him enough? Have I taught him good?
आस्क योरसेल्फ, डोंट ब्लेम द बच्चा. श्वेता, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और मैं सब पेरेंट को बोल रहा है कि बच्चे लोग हमको देखता है, हम क्या खाता है, हम कैसा सोता है, कितना समय पर सोता है, हमारा डिसिप्लिन कैसा होता है. मैंने 3 साल के पहले मेरे कराटे वापस शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा बच्चा बोल रहा है कि पापा मेरे को कराटे नहीं करने का है. जब मैंने चालू कर दिया तो वो देखता है कि पापा कराटे कर रहे, मैं भी करेगा. अभी हमारा कंपटीशन हो गया कि पापा तुम सिर्फ Super. ग्रीन बेल्ट है, मैं आपसे बड़ा हूँ. सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट फॉर पेरेंट्स टू लीड बाय एग्जाम्पल, कि दिखाने के कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, या मैं सुट्टा नहीं पी रहा हूँ, या मैं दारू बच्चे के सामने ज़्यादा नहीं पी रहा हूँ. तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस ऑन इम्प्रिंटिंग इन द चाइल्ड? सो डू यू नो दैट इंडिया में, मैं इंडिया का रिसर्च बोल रही हूँ एंड दिस इज WHO का रिसर्च फॉर इंडिया, 50% पेरेंट्स वर्कआउट ही नहीं करते हैं. इंडिया में 50% पेरेंट्स ऑफ 30 to 40 एज ग्रुप में, यंग पेरेंट्स, राइट. सो आप समझो, मतलब मेरा बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा, 20 साल का होगा, इफ आई एम नॉट वर्किंग आउट, आई एम गोना लूज माई मसल, मेरा बोन्स अफेक्ट होने वाला है, माई एंटायर में मोटा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, डायबिटीज, शुगर, BP, एवरीथिंग. डू आई वॉन्ट कि मेरा बच्चा अभी 20 साल का हुआ है, जो उसको उसका करियर बनाना है, उसको उसकी लाइफ बनानी है, और उसमें वो मेरे हेल्थ के पीछे चक्कर काटेगा, मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा, राइट? शुड आई नॉट बी द वन, बच्चा तू जा अपनी जिंदगी बना, आई एम सिटिंग हियर, वेन एवर यू नीड मी, I am there for you. I am there for you. Not I am a sick person. I am a sick person. I cannot do anything. ये तो मम्मा नहीं कर सकती. No. I will take care of my grandkids. बच्चा, while you are, making your career, मैं बच्चे को नैनी के पास नहीं दूंगी. I am here with the family. और बच्चा is going to be. क्या thought है श्वेता जी? And that is what I want आज के parents को, that you have to like take that responsibility कि and 60 years का मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी 60 years पे नहीं चालू होगा, 30 years पे चालू होगा. दूसरा चीज़ है, हम लेट पेरेंट्स जो होता है, हमारा बच्चा भी 20 में बच्चा पैदा नहीं करेगा. सो वी विल बिकम ग्रैंड पेरेंट्स, दादा और नाना जी हो जाएगा इन आवर 70s and 80s, right? Oh, that's such a right? powerful thought. And तब if you are not able to contribute, means मेरा बच्चा, my son, he is taking care of his infant, taking care of his sick parents. I don't want to give that to my child. I want to liberate my child. बच्चा, you are free from my responsibilities. तुम्हें ये सब कोई टेंशन नहीं है, because your mama has built the foundation. 30 years back से मैंने foundation build करना start कर दिया. You don't worry. यहाँ का सब मीडिया लोग हंस रहा है क्योंकि भाई हम जवान है, लेकिन जब हम ग्रैंडफादर हो जाएगा, हमको बॉडी बिल्डिंग करने का अभी शुरू स्टार्ट करने का है. बट इट्स सच अ वैलिड पॉइंट. आई नेवर थॉट ऑफ इट दैट वे कि वन, ठीक है, मेरा बच्चा को इंस्पायर करने का है, लेकिन दूसरा है मेरा बच्चा का देखभाल करने का है. And also I know so many of my friends, younger friends, they've just started out, but they are बेचारे हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे, उनके पेरेंट्स unfortunately are unwell, and that is और बच्चे out of love they will of course do it, but अंदर उनको ये होता है ना कि यार इतनी I want to work and I want to do this, and मैं यहाँ पे, and when I as a parent am एकदम healthy, fit, तो ये फाउंडेशन 30 years पहले स्टार्ट होता है. आपको 60 years पे अगर हेल्दी एंड फिट होना है तो 30 years से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दो. पुराना ज़माने में थॉट क्या था, जल्दी बच्चा पैदा करने का है, मतलब इन 2025, ताकि जब आप बूढ़ा हो जाएगा ये लोग आपका देखभाल कर सकता है. एब्सोल्युटली. अभी नया ज़माना क्या है, वी आर ऑल हैविंग चिल्ड्रन लेटर, देयरफॉर वी एज पेरेंट्स, हमारा माइंड शिफ्ट होने का है कि खुद का देखभाल करने का है, एंड इंस्पायर आवर चिल्ड्रन. एब्सोल्युटली. एंड ये तो भूल ही जाओ कि आवर किड्स आर गोइंग टू स्टे इन द सेम हाउसेज, वो तो होने नहीं. दे आर गोइंग टू गो आउट, वी आर गोइंग टू बी द एम्प्टी नेस्ट होगा. वी आर नॉट गोइंग टू बी लिविंग विद आवर चिल्ड्रन, मी एंड माई हस्बैंड, राइट? तो उसमें सिर्फ हमें ही हमारा ध्यान रखना है, वो तो हमें पता है अभी से. और उसमें ध्यान रखना, उसका मतलब क्या है? हेल्थ मीन्स वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, and eating right, having proper sleep,
डी एडिक्शन टू सोशल मीडिया, बिकॉज रिसर्च कहता है पेरेंट्स 30 to 40 एज ग्रुप के आर स्पेंडिंग 8 hours on social media, 8 hours per day on social media. Imagine. So where is the world going? We need to de-addict ourselves. और इसको हम बोलते हैं पॉपकॉर्न ब्रेन. पॉपकॉर्न ब्रेन क्या है? पॉपकॉर्न ब्रेन का मतलब है हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंट रील्स देखते देखते क्या हो रहा है, अभी ये ग्राफिक्स आया, अभी ये म्यूजिक आया, ये आया. मेरे ब्रेन को एवरी 15 सेकेंड पे कुछ स्टिमुलेशन की आदत हो गई है. माई ब्रेन कैन नॉट सिट स्टिल, आई कैन नॉट काम डाउन, बिकॉज कंडीशनिंग हो गया है मेरा ब्रेन का कि गिव मी सम स्टिमुलेशन. एडिक्शन हो गया है मेरे ब्रेन को. वी नीड टू डी एडिक्ट बाय हमारा सोशल कंजम्पशन जो है वो हमें लेस करना है. इंडिया सुना, हम सोशल मीडिया का कंजम्पशन कम करने का है. रायंस का रील कम देखने का है, नहीं तो थप्पड़ मिलेगा. नो, यू नो व्हाट, आई रियली फील जो एजुकेशनल कंटेंट है, यू वॉच दैट, विच इज़ ग्रेट. आप जो पुट करते हो विच इज़ ग्रेट, बिकॉज मुझे उससे कुछ इंस्पिरेशन इन्फॉर्मेशन मिल रहा है एंड इट इज़ वर्किंग पॉजिटिवली ऑन माई लाइफ, विच इज़ ग्रेट. But if there are random people dancing on some random song, please, I don't want to see that. So, speaking of random people dancing on some songs, हमारा बच्चा होते हमको भी नाचता है, tantrums. Oh yes. Right? सबसे बेस्ट तरीका टू हैंडल tantrums. एंड क्या मैसेज आपको देने का पेरेंट्स को कि भाई tantrums will happen, होगा ही, tantrums होगा ही, तो हमको क्या करने का है? Let's understand, मेरा बच्चा जब 0 to 1 year का है ना, तब उसका ब्रेन में जो न्यूरल कनेक्शंस है वो बहुत कम है. जैसे ही वो 1 year का होता है ना, एक्सप्लोजन ऑफ न्यूरल कनेक्शंस होता है उसके ब्रेन में. उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है. सो धीरे 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 उसके टैंट्रम स्टार्ट हो जाते हैं. नाउ आर टैंट्रम्स बैड? नो, टैंट्रम्स आर हेल्दी. Tantrums are a good sign that my बच्चा का brain is growing. It's a developmental milestone. Tantruming बच्चा is not a bad बच्चा. But if I as a parent don't know how to handle the tantrum, bad parent. So, is बच्चा wrong? No. आलिया भट्ट का बच्चा भी tantrum करता है, करीना कपूर का भी करता है, आपका भी करता है, मेरा भी करता है. दुनिया के हर एक पेरेंट जिसका बच्चा 2 साल का हो गया है, वो टैंट्रम 2 साल भी नहीं, 1.5 साल का, 18 months, वो टैंट्रम करेगा ही करेगा, विच इज़ ओके. सो आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट माई बच्चाज ब्रेन इज़ वेरी लेस डेवलप्ड, एकदम अंडर डेवलप्ड है. मुझे बहुत कामली बच्चे के साथ डील करना है. उसका इम्पल्स कंट्रोल्स आर मिसिंग. इम्पल्स कंट्रोल मीनिंग मेरे बच्चे का द पार्ट ऑफ द ब्रेन जहाँ पे बहुत सारे इमोशंस प्रोसेस होते हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जिद, वो सब डेवलप हो गया है. द एमिगडाला जहाँ पे इमोशंस आते हैं वो डेवलप हो गया है. बट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जहाँ पे इमोशंस रेगुलेट होते हैं वो डेवलप ही नहीं हुआ है. तो इमोशंस आया पर रेगुलेशन नहीं आया. तो मुझे समझना है कि साइंटिफिकली माई बच्चा कुछ नहीं कर सकता. माई बच्चा जब टैंट्रम थ्रो कर रहा है, ही इज़ नॉट giving me a hard time, my bacha is having a hard time. So I as a parent need to understand that, oh my poor baby, I am with you bacha, I know, I understand, I empathize with you, come here my baby. And मैं calmly मैं बच्चे को lead करूँ. किस उम्र तक ये कर सकता है? 2 to 7 years में ये सबसे ज़्यादा. 14-year-old का बच्चा टैंट्रम करेगा तो 14 ईयर का बच्चा बात करने का है. 14 ईयर का बच्चा टैंट्रम नहीं करता बिकॉज वो उनका लॉजिक ब्रेन डेवलप हो जाता है. तो क्वेश्चनिंग का ब्रेन होता है. यस, सो दे आर क्वेश्चनिंग, दे आर आस्किंग रीजंस एंड देन दे ऑल्सो हैव अ वेरी ईगोसेंट्रिक ब्रेन. मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, राइट? सो तब व्हाट इज गोइंग टू वर्क इज अ लॉट ऑफ कनेक्शन, लॉट ऑफ एम्पैथी. एंड आप कितना काउंसिल करते हो बच्चे को, 1-on-1 टाइम कितना स्पेंड कर रहे हो. अदरवाइज बच्चा इज बाउंड टू लाइक यू नो रेबेल. वो रेबेल करेगा ही. बट आपका इमोशनल कनेक्ट जितना होगा ना बच्चे के साथ, उतना आपका बच्चा आपके हाथ में रहेगा.
And also I will tell one thing to all the parents जिनका बच्चा is 9 and above, प्लीज़ मेक श्योर कि आपके बच्चे के जो प्राइमरी सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है, यू नो देम एंड देयर फैमिलीज वेरी वेल. बिकॉज अगर गलत इन्फ्लुएंस बच्चे के लाइफ में आ गया ना, इट इज़ रियली गोइंग टू इम्पैक्ट उनका इतना बड़ा एक डेकेड ऑफ फॉर्मेटिव ईयर्स, 9 to 19 ईयर्स, जो उनकी लाइफ का एकदम फॉर्मेटिव फेज है, जहाँ पे उनका नेक्स्ट एंटायर लाइफ इज़ गोइंग टू बी डिटर्मिंड. तो उसमें गलत लोग नहीं आने चाहिए. सो यू हैव टू बी वॉचफुल ऑफ दैट कि बच्चे के फ्रेंड्स, यू नो देम, यू नो देयर फैमिलीज, एंड यू आर ऑल्सो कनेक्टेड विद बच्चों के फ्रेंड्स. टेक देम आउट ऑन अ ड्राइव, ऑन अ डिनर, connect with them, chat with them, laugh with them, play a game with them, pickleball खेलो उनके साथ. That's how you connect with the young generation. Right. अगर आप वो एज ओल्ड वेज में रखो, कह दिया बस कह दिया, they're like ignore you and they'll be like tata bye bye, not going to listen to you. It does not work anymore. Actually मेरा एक क्लाइंट था, तो उन्होंने मेरे को एडवाइस दिया कि रायन, जब आप घर लेते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा बड़ा घर ले लो. तो मैंने बोला क्यों सर? देखो, जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, आपका घर उतना बड़ा होना चाहिए जहाँ आपका बच्चा का फ्रेंड वहाँ आ सकता है और पार्टी कर सकता है. एक पिज़्ज़ा वाला ओवन बना लो, खुद का बार बना लो. क्योंकि मैंने बोला ऐसा क्यों? क्योंकि योर चिल्ड्रन एंड योर चिल्ड्रंस फ्रेंड शुड फाइंड दैट योर हाउस इज़ द बेस्ट प्लेस where these people can feel so happy, so secure, and so independent as an adult that they party in your own house. And I thought that was such a powerful thing. What a breakthrough thought. Right? And then he says, there's one thing that I do for my kids, friends, is I get up at 3 o'clock in the morning and cook for them after they're partying. And I heard that Shah Rukh Khan does the same thing, and that's why everyone likes to party with Uncle Shah Rukh. So I think we as parents should allow our children to grow up and we should party with them. Absolutely. What a beautiful thought to end this I think segment. I think we're becoming too serious with the whole science of parenting. We need to be more bindas, spend a little bit more time. But Shweta, before I let you go, I want a few quick fire questions because, you know, we as parents are always busy. We don't have time. So for India, to inspire them and to come and watch this entire, probably one of the best podcasts I've ever done in terms of, it's so personal to my heart, which is, let's start off, okay? Okay. One book or books that parents should read to get them ready for life. My favorite book, personal favorite, How to Talk So That Kids Listen and Listen So That Kids Talk. Beautiful book on emotional connect with the child and how to communicate with children respectfully and politely and have a two-way communication and not just one-way lecturing. Beautiful book. Would you give this book to your friends? 100%. I've gifted it to so many people. If people don't like to read, I know many people don't like to read. Is there any... Oh yeah, there is a YouTube summary of the book. We are going to get you the YouTube summary. Absolutely, yes. 3 things that every parent should do with their kids just before bedtime. Physical, mental, emotional. Physical, hygiene, shower, brush. Mental, read a book. And emotional, counseling of what good and bad happened in the day, reflecting on that, and affirmations. What should we do when our kids come home from school? Don't ask them a lot of questions firstly. Kya hua, kya khaya, this, that. Just follow their lead. And I missed you, बच्चा. Come, give me a hug and follow. बच्चा जो कर रहा है उसके पीछे पीछे जाओ and just make them feel special कि इतने hours के बाद you are here and this is all I needed. Reinforcement of love. 5 things that should never exist in your kitchen. Ketchup, instant noodles, sugary drinks, anything packaged, biscuits, and anything that's available in departmental store like chips, processed foods. 4 must-do activities with your kids. As with parents, Yes. Outdoor play. Number 2, sit down, open-ended toys like block, Lego. It enhances their creative imagination. Number 3, book reading. And number 4, meditation, affirmations, exercise. 3 things that we need to do with our teenage children. Go out on drives with them.
invite their friends over and connect with them, and don't advise too much, just be with them. उनको जो करना है, ride the tide. I like that, ride the tide. I'm going to use that with my son. Ride the tide, I can. What can I do to distract my kid from screen time? Because he's addicted to it. Yeah. So I think you need to do a lot of activities which engages him otherwise, like arts or baking or taking, like on a playground and doing some physical activities. You can do, some sort of handwork and fine motor activities. So anything that does not involve screen, just take anything like a cup and start doing pretend play. Simple as that. You usually talk about the 7-7-7 rule for kids. What's that? 0 to 7 years, which requires emotional investment from parents. 7 to 14 years, which is जहाँ पे kids का academics and other skills हम उनकी enhance कर रहे हैं. And 14 to 21 years is the last 7, जहाँ पे they are on to self-discovery. They are identifying who am I, what is my role in this world, what value am I bringing. So these are the 3 sevens in a child's life. You're doing your dream job, but your circle of influence is limited. Right. What if God came down tomorrow and said, I give you unlimited powers? What would be something that you would correct in our nation, given the fact that you were unfettered by time or resources? Wow. What would you like to do? Wow. If I were that powerful in terms of my influence, I would really empower the families to connect more with the children, parents to calm down, to model a calm behavior, and to understand कि बच्चे की कोई गलती नहीं है. बच्चा बच्चा है, बच्चे ऐसे ही होते हैं, सब बच्चे ऐसे होते हैं. And understand your child. Just don't get so angry, frustrated with them. Be patient and be kind with your child. Spend quality time. And trust me, all parents need to do this. I wish more parents knew this. श्वेता जी, ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली एक सोशल मीडिया का बिल आ गया जो अंडर 16 years of age सोशल मीडिया इज बैंड फॉर चिल्ड्रन. अगर आप कैबिनेट मिनिस्टर है for child education, wellness, development, will you feel that our country also needs a ban like this? 100%. I couldn't agree with this more. 100%. क्यों? Because social media बहुत distract कर रहा है ये generation को. तो मतलब हमारा There जो is so future generation, they are not going to be very powerful? Not very because सब fickle minded हो रहे हैं with social media. They are getting trapped into low vibrational negative thoughts. जो मुझे इस एज पे आना ही नहीं, ये सब मेरी फिक्र होनी ही नहीं चाहिए इतनी यंग एज में. मैं डर रहा हूँ क्योंकि अभी AI आएगा, AI सब कुछ टेक ओवर करेगा और it नेक्स्ट is जनरेशन का फिकल माइंडेड. how businesses are working. It is already changing so much, and AI is like just आया है 1% AI is there. Imagine AI coming in full power. Wow, the world is going to be like a different place. You and I cannot fathom what is happening in this world, what world we saw and what are we seeing. And we are the only generation who's going to see this, the split of both the sides. It's going to be crazy. श्वेता जी, हमारा देश में लड़की का रिस्पेक्ट थोड़ा कम है. कितना इम्पोर्टेंट है सब जो मम्मी लोग हैं उनका मेल चाइल्ड बेटा को बोलने का है कि वुमेन को रिस्पेक्ट करने का है. How important is it the woman's job? Please tell India. It is not just woman's job, it is parents' job. My husband, the father, also has to tell my son, Mama is equal to dad and sister is equal to you. We are all equals. Gender based कुछ भी नहीं होता है. बिकॉज सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हम इतने एजुकेटेड होने के बावजूद भी ऐसा करते हैं कि अगस्त्य को फुटबॉल क्लास में डाला और अमारा को डांस क्लास में डाला या फिर आर्ट्स क्लास में डाला. सो वी एज पेरेंट्स रियली नीड टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप. जो चलता आ रहा है वो नहीं चलेगा एंड वी आर ऑल इक्वल एंड दैट्स हाउ हम घर में डे टू डे लाइफ में ऐसा एग्जाम्पल सेट करें. ऐसा नहीं कि मैं वन फाइन डे मेरे बच्चे को बोलूँगी कि बच्चे गर्ल्स एंड बॉयज़ आर इक्वल. नो, हम डेली प्रैक्टिस से मेरा बच्चा रोज़ ये देख रहा है
और उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये जा रहा है एंड दैट इज नॉर्मल फॉर हिम दैट यस गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल. श्वेता जी, लोग आपको क्यों कांटेक्ट करने का है और कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? सो हमारा कोर्स चलता है लाइक आई डू अ लॉट ऑफ ऑनलाइन कोचिंग इन टर्म्स ऑफ मेरा चाइल्ड साइकोलॉजी सर्टिफाइड प्रोग्राम होता है, NLP सबकॉन्शियस माइंड सर्टिफाइड प्रोग्राम. तो ये पेरेंट के लिए है या नादर के चाइल्ड एक्सपर्ट? पेरेंट्स के तो लिए मैं होता है. ये कोर्स As a- एनरोल कर सकता है? Absolutely. और कितना दिन चलता है? इट्स अ मंथली कोर्स. हाँ, और मेरे को कितना टाइम देना पड़ेगा? थ्राइस अ वीक, हाँ जी. 90 minutes, 90 Monday, Wednesday, Friday, 4 to 5:30, 90 minutes. चलो, मैं आपका स्टूडेंट बन जाएगा. And we have programs like online public speaking for children, then workshops on tantrum handling, then we do a lot of one-on-one DMs also for counseling. तो then, आपका लिंक मेरे को दे सकता है? एवरीवन, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्टर जहां आप श्वेता जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बच्चे सबसे वैल्यूएबल एसेट होता है. Absolutely, yes. Any final words of wisdom to India? All the parents, calm down. इतना गुस्सा नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, सोशल मीडिया से डी अडिक्ट होना है एंड सिंपल जॉयज़ ऑफ लाइफ, फ्लोर पे बैठ के बच्चों के साथ खेलना है, खाना साथ में खाना है. एंड ऑनेस्टली आजू बाजू इतना ज़्यादा शोर है, वो शोर मैटर नहीं करता है. व्हाट मैटर्स इज़ हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, एंड बच्चे उतना ही सीखेंगे जितना हम उनको सिखाएंगे. सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. बच्चे को अच्छे से प्यार से सिखाओ, डांट के मत सिखाओ. प्यार से सिखाओगे वो ज़्यादा सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, लॉन्ग रन तक सीखेंगे. तो येस, दैट्स इट. हैप्पी पेरेंटिंग टू यू. Thank you so much. थैंक यू. Thank you for watching this far. It's been an amazing episode and I'm so grateful to have you till the end. If you like this video, please share this video with your loved ones. Better still, gift me a subscribe, a like, or even a comment and we'll come back to you.